बच्चों बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर के बारे में, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स. दैट इज द 9th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री in class 12th, and I told you the chapter is very interesting. From starting onwards we have seen so many things, how the empire was established and how the word Mughal came, that came from Mongols, and then we studied about the Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and how the things were going on, how the administration was going on, about that architecture of the time, and about the culture of the time, about the marriages, about other functions. And today what we are going to focus, that is about the Mughal court. अब कोर्ट में कैसे काम हो रहा था, but before that we will study about the females condition, females का क्या एरिया था. तो वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स रहा करती थी, that was called harem. Harem was a place where only females were residing, and the imperial household, in this particular topic we will study about this, and harem was there, and it was the symbol of polygamy. Polygamy, a king was having so many wives were there for king, and they were residing in a particular place in the particular Mughal that palace, and that was called harem. So here also there was discrimination between the females. अलग अलग तरह की फीमेल वहाँ पे थी, स्लेव्स भी थी, रानियाँ भी थी, दासियाँ भी थी, और the people those who were associated to help them, they were also there, but all were females. So here the discrimination was basically between the two parts, royal family, that was called the begum. जो wives, राजा की जो पत्नियाँ which belong to the royal family, they were called begum. And those though were not from the royal family, not noble, they were called agas. So it was the difference between the begum and the agas, that the royal family, those who were belonging, they were treated differently. There was discrimination. उनके साथ व्यवहार करने का, उनका रहने का तौर तरीका सब अलग था. But one more thing was there at the time. If the king want to make any aga to begum, it was depending on the wish on the king. राजा की विश पर डिपेंड करता था कि अगर वो किसी बेगम, किसी आगा को बेगम बनाना चाह रहा है, तो ही वॉज फ्री टू डू दैट. सो इट वॉज टोटली डिपेंडिंग ऑन द किंग. नाउ इन दैट केस यू कैन सी वन एग्जाम्पल ऑल्सो. देयर वॉज अ मूवी इन जोधा एंड अकबर. इन दैट मूवी यू कैन सी देयर वॉज अ क्वीन फ्रॉम आमेर, एंड शी जस्ट मेड द पर्टिकुलर टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन हरम. उसमें दिखाते हैं कि हरम में किस तरह से फीमेल सस्टेन कर रही हैं, कैसे रहती हैं, बट ना उनका टेम्पल बना कृष्णा का, जहाँ वो वर्शिप किया करती थी. सो हेयर यू कैन सी नूर जहाँ. अब बेगम जो थी वो कुछ कंट्रोलिंग पावर भी उनके पास में आ गई. दे वर कंट्रोलिंग ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लाइक नूर जहाँ हु स्टार्टेड कंट्रोल द इंपीरियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. इवन they were very good creators also. अगर हम चांदनी चौक की बात करें, which was very famous in old Delhi, and it was designed by Jahanara. So here we can see females were creative as well as they were having the interest and they were having the leadership. So they were doing so many sorts, like they were having the very important position in Mughal Empire. इवन अभी हमने देखा, डिज़ाइन किया, उसके साथ हम देखते हैं कि नाउ गुलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर, बाबर की डॉटर जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा. सो दे वर गुड ऑथर्स ऑल्सो. इवन दे नो हाउ टू राइट एंड रीड. उनको लिखना पढ़ना भी आता था. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द फीमेल. एक छोटा पार्ट जो था उनकी हम बात कर रहे हैं, मुगल दरबार की बात कर रहे हैं, उन बेगम की बात कर रहे हैं. देन अकबर जो थे, ही वॉज हैविंग वेरी गुड फेथ इन अबुल फजल, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो बहुत अच्छे फिलोसफर थे, राइटर थे, पेंटर थे, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, स्कॉलर थे. और वो क्या करते थे, उन्होंने कंजर्वेटिव आइडियाज़ के अगेंस्ट बात करी. उन्होंने कुछ न्यू थिंग्स को, प्रैक्टिकल थिंग्स को इस्लाम में जोड़ने की बात करी. दैट्स वाई अकबर वॉज प्रमोटिंग अबुल फजल. अकबर अबुल फजल को प्रमोट कर रहे थे, एंड ही मेड हिम हिज एडवाइज़र. उनको उन्होंने अपना एडवाइज़र बनाया. एंड अबुल फजल रोट द स्टोरी ऑफ द किंगडम अकबरनामा. अकबरनामा उन्होंने लिखा, और अकबरनामा के 3 पार्ट थे. थर्ड पार्ट था आईन अकबरी. सो इन सच अ वे व्हाट वी कैन से दैट अकबर्स
दरबार और मुगल एम्पायर वॉज फुल ऑफ द पीपल दोज हु वर हैविंग द स्किल एंड द नॉलेज and they were the scholars, they were writing about the things which happened in the Mughal court. So ये तो बात रही वहाँ के फीमेल्स की, वहाँ की फीमेल की नॉलेज की and how they were having the prominent role. Now coming to the recruitments and rank. अब जैसे हमारे यहाँ रैंक्स होती हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उस समय भी मुगल एम्पायर में भी so many ranks and recruitments were there. How? The officer कॉप्स को गुलदस्ता कहा गया. जो ऑफिसर्स की एक यूनिट थी दैट वाज कॉल्ड गुलदस्ता, एज गुलदस्ता इज हैविंग सो मेनी फ्लावर्स इन दैट. एक कंपाइल्ड वे में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इसी तरह वेरियस टाइप ऑफ ऑफिसर्स वर देयर दैट वाज कॉल्ड गुलदस्ता. द राजपूत एंड इंडियन मुस्लिम्स गॉट इंपीरियल सर्विसेज. राजपूत और इंपीरियल मुस्लिम्स, क्योंकि जो मुगल एम्पायर था दैट वाज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द मुगल्स और द इस्लामिक पीपल, it was of the various varieties. So Rajput and Indian Muslims, they were also got the part in imperial services. And here one name we are finding, that is Mansabdar. मनसब जो एरिया, जो प्रोविंस हुआ करता था, उसका हेड एक बनाया गया. द पर्सन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एरिया, दैट वॉज कॉल्ड मनसबदार. एंड इन 17th century मनसबदार्स ऑफ 1000 ज़ाट और अबव रैंक एज नोबल्स और उमरा. अब जिनके पास 1000 से ज़्यादा ज़ाट जो एरिया होते छोटे छोटे वो होते थे, उनको नोबल्स या उमरा के नाम से डिक्लेयर किया गया. किनको? मनसबदार्स को. सो मनसब सिस्टम डिज़ाइन बाय अकबर. ये सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले अकबर थे. एंड इट वॉज लाइक दैट ओनली कि जैसे हमारे यहाँ वेरियस स्टेट्स आर देयर. इफ़ वी वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर एरिया, अगर हम जानना चाहते हैं, तो उस लोकल एरिया की, उस छोटे एरिया की इशू को जानने के लिए वी हैव टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन देयर, वी हैव टू फ्रेम द गवर्नमेंट देयर. तो उस छोटे एरिया के बारे में जानने के लिए हमें वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा. सो वो मनसब जो थी वो डिज़ाइन की गई अकबर के द्वारा. अकबर डिज़ाइन दैट. देन 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स. अब वहाँ पे देखिए, अभी हम जो बात करें, सो मेनी वेरियस मिनिस्टर्स वर देयर, सो मेनी वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वर देयर, दोज हु वर रनिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन मुगल एम्पायर. बट हेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेन डेजिग्नेशनरी. अब डेजिग्नेशन मेन जो थे उनकी बात कर रहे हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर हैं, कौन से हैं? दीवाने आला, फाइनेंस मिनिस्टर. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? जब फाइनेंस ही जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा या स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, देन हाउ द कंट्री विल बी एबल टू डेवलप. कोई भी एम्पायर डेवलप कैसे होगा जब तक फाइनेंस डेवलप नहीं होगा. सो फाइनेंस पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दिस मिनिस्ट्री हैज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट वॉज द दीवाने आला. एंड द सेकंड वॉज सदर और सुदूर. सदर और सुदूर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, जो ग्रांट देने का, कहाँ किसको कितना पैसा देना है, सदर और सुदूर उसका वर्क करते थे. सो ये जो दोनों मिनिस्टर्स थे, दे वर बिलोंगिंग टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड दे वर प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. देन द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स इंस्पेक्टेड बाय मीर बख्शी. मीर बख्शी सारे रिकॉर्ड्स को चेक करते थे. अकाउंटेंट से जो रिकॉर्ड बनाए, जो आपकी पर्टिकुलर पुराने जो अकाउंट्स बने हैं या फिर कोई ऐसी राइटिंग की गई है या दरबार के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, कोर्ट के बारे में कोई अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को सबको मीर बख्शी चेक किया करते थे. तो ही वॉज देयर टू इंस्पेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स. ही वॉज कॉल्ड मीर बख्शी. देयर वी कैन फाइंड वन मोर नेम, दैट वॉज ऑफ गवर्नर. वहाँ पे आपको एक और नाम मिलेगा, वो है नाम गवर्नर का. और गवर्नर क्या कर रहे हैं? गवर्नर वॉज हेड ऑफ द प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन, और वो प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे और डायरेक्टली दे वर रिपोर्टिंग टू द किंग. अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हो गए गवर्नर, वो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? डायरेक्टली ही इज रिपोर्टिंग टू द किंग ओनली. देन परगना. परगना क्या था आपका? सब डिस्ट्रिक्ट. हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग पार्ट को गवर्न कौन कर रहा है एंड हु इज गोइंग टू ऑब्जर्व दैम, हु इज गोइंग टू सी दैम. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द परगना, दैट इज सब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय कानून गो. अब 3 लोग जो थे वो यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं. व्हाट आर द नेम्स? कानून गो, चौधरी एंड काजी.
These were the three peoples, those who are going to control the activities of परगना. ये तीन लोग परगना की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ अब सिर्फ हेड के होने से काम हो जाएगा? नहीं होगा. देन दे नीड सम एसोसिएट. तो इसके अलावा और कौन से ऐसे लोग थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे? सो फॉर दैट वी आर कमिंग टू द अकाउंटेंट्स. अकाउंटेंट्स वर देयर, क्लर्क्स वर देयर, मैनेजर्स वर देयर, ऑडिटर्स वर देयर. ये सारे लोग दे वर हेल्पिंग टू द मनसबदार, टू द काजी, टू चौधरी, टू कानूनगो, टू गवर्नर, टू मीर बख्शी. इन सबको हेल्प करने के लिए दे वर देयर. मतलब देयर वॉज द ह्यूज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक बड़ा सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का जिससे पूरा मुगल एम्पायर होल्ड हो रहा था. सो किसी भी एम्पायर के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ द ऑफिशियल्स आर नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, इफ द थिंग्स आर नॉट फ्रेम्ड in that manner, so the empire will not be able to run for a long time. So here again we are going to revise. देखिए हम बात करते हैं imperial household की. क्या था वहाँ पे? हरम. हरम में क्या था? polygamy means a king is having so many wives. royal family बेगम, और जो नॉट नोबल फैमिली की नहीं थी वो आगाज कहलाई. बट आगाज कैन बी प्रमोटेड टू द बेगम ऑन द विश ऑफ किंग, बट देयर वॉज अ कंडीशन. व्हाट कंडीशन? द किंग शुड नॉट हैव मोर देन 4 wives. देन नूरजहां ने क्या किया था? नूरजहां स्टार्ट कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड चांदनी चौक वॉज डिजाइन बाय जहांआरा. देन गुलबदन बेगम, a daughter of Babur, wrote about the Humayunama, then about Abul Fazl we have studied earlier also, and he was the main courtier of Akbar, and Akbar has made him advisor because he was there to criticize the old tradition and the things which are ridiculous in Islam. Then the next thing, the recruitment in the ranks. क्या क्या था? ऑफिसर्स कॉर्प्स थी, इसको गुलदस्ता कहा गया, जहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे. राजपूत इंडियन मुस्लिम्स गॉट इंपीरियल सर्विसेज इन 17th century. मनसबदार्स कौन थे? जो ऑफ 1000 जाट और अबव रैंक एज नोबल्स एंड उमरा. अब मनसबदार क्या थे? जो 1000 जाट के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे एंड दे वर रैंक्ड एज नोबल्स और उमरा. देन मनसब सिस्टम किसने डिजाइन किया था? इट वॉज डिजाइन बाय अकबर. 2 important ministers were दीवान आला, फाइनेंस मिनिस्टर, सदर सुदर. द मिनिस्टर ऑफ ग्रांट, सदर सुदर थे मिनिस्टर ऑफ ग्रांट. देन द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स इंस्पेक्टेड बाय मीर बख्शी, इंस्पेक्शन का वर्क कर रहे थे. गवर्नर क्या थे? हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही वॉज रिपोर्टिंग टू द किंग डायरेक्टली. Then Pargana, that is called sub-district, it was controlled by Kanungo, Chaudhry and Qazi, and they were headed by the accountants, clerks, managers and the auditors, those who were going to help them. So without their help, they were not able to rule. And the main language in which they were working, that official language was Persian, Farsi Bhasha, which was promoted by Akbar. They were working in that language only. So today what we discussed about the administrative system, administrative part of the Mughal Empire, which is really very important. So you all need to focus on that. You all need to read the chapter thoroughly so that when the question is coming from anywhere, you can solve the question properly. So these are the key points of that. Still so many other prominent positions are left, but we have discussed the main here. आपको बुक में से पूरा थॉरली रीड करना है, then you will come to know about so many other things, about other facts. So that's all for today. Do revise the topic. Don't forget to read from NCERT. Thank you so much.